یہ کہانی ایک خوبصورت مہیلا ایلس سے شروع ہوتی ہے جو 40 سال کی ہے۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے پیرس کے ایک فیشن میگزین میں کام کر رہی ہے اور اپنے کیریئر کے ساتھ مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے سخت مزاجی اور پرانا فیشن اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اسی لیے اسے پچھلے 4 سال سے کوئی پروموشن نہیں ملا۔ ایلس کی شادی ٹوٹ چکی ہے، وہ اپنے کم عمر بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن مصروف کام کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی۔ وہ ہر روز دفتر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے بہن کے گھر چھوڑ دیتی ہے۔ ایلس کی زندگی بہت تنہائی بھری ہے اور اسے اپنے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک کام کے لیے ایلس برازیل جاتی ہے اور واپسی پر جہاز میں اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے ایڈم سے ہوتی ہے۔ ایڈم صرف 20 سال کا ہے اور کالج اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے اکانومی سیٹ بک کر رکھی تھی، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے اسے بزنس کلاس میں منتقل کر دیا جاتا ہے، بالکل ایلس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ پہلی بار بزنس کلاس میں بیٹھ کر وہ بے حد خوش ہے، جبکہ ایلس اپنی لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف ہے۔ لینڈنگ کے دوران طوفانی جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور خوفزدہ ہو کر ایلس اچانک ایڈم کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ ایڈم کے لیے یہ پہلا موقع ہے جب کسی مہیلا نے اس طرح اس کا ہاتھ تھاما ہو، اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی جہاز اترتا ہے، ایلس روانگی کی تیاری کرتی ہے۔ ایڈم بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایلس بس الوداع کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت ایڈم دیکھتا ہے کہ اس کا پین ڈرائیو سیٹ کے نیچے گر گیا ہے۔ وہ دوڑ کر باہر آتا ہے تاکہ واپس دے سکے، لیکن دیر ہو چکی ہے۔ ایلس اپنی بہن کے ساتھ گاڑی میں جا چکی ہے۔ راستے میں ایلس کی بہن اسے ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے دوبارہ ڈیٹنگ شروع کرنی چاہیے، لیکن ایلس شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی اور صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا جواب بہن کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایلس اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ دفتر میں ایلس کو اپنے ساتھیوں کے ٹھنڈے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب اسے سخت مزاج اور پرانا فیشن سمجھتے ہیں اور اس کی غیبت کرتے ہیں، البتہ ایک مرد دوست اس کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ ایک دن ایک اسٹاف ممبر ایلس کو بتاتا ہے کہ ایک لڑکا ایڈم فون پر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایلس سخت لہجے میں کہتی ہے کہ وہ کسی ایڈم کو نہیں جانتی اور وہ اس کے میسج کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بعد میں وہ اپنے باس سے پروموشن کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن باس کہتا ہے کہ اس کے آرٹیکلز پرانے اور بے جان لگتے ہیں۔ وہ ایلس کو خبردار کرتا ہے اگر وہ نیا اور دلچسپ مواد نہ لائی تو اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات ایلس کو بہت پریشان کر دیتی ہے اور وہ دفتر میں دیر تک بیٹھی رہتی ہے کہ کچھ نیا کیسے بنایا جا سکے۔ اسی وقت اسے اسٹاف نوٹ پر ایڈم اور پین ڈرائیو یاد آ جاتا ہے۔ وہ ترنت ایڈم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پین ڈرائیو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس وقت ایڈم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ہوتا ہے۔ وہ ایلس کو وہاں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایلس پہنچتی ہے تو ایڈم اسے اپنے دوستوں سے ملواتا ہے۔ اتفاق سے ایلس کے دفتر کی 2 لڑکیاں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ اسے ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ایلس جلدی سے پین ڈرائیو مانگتی ہے، لیکن ایڈم کہتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں ہے۔ وہ دونوں ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور ایڈم اپنے اسکوٹر پر اسے بٹھانے کی پیشکش کرتا ہے۔ ایلس ہچکچاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اسکوٹر پر سفر نہیں کیا، مگر ایڈم اسے ہیلمٹ دیتا ہے اور بٹھا لیتا ہے۔ اسی وقت اس کے 2 کولیگز ایک ایسے زاویے سے فوٹو کھینچ لیتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو چوم رہے ہوں۔ وہ تصویر خفیہ طور پر آن لائن ڈال دیتے ہیں۔ ایڈم اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں اس کا والد بھی موجود ہوتا ہے۔ ایڈم پین ڈرائیو دینے میں تھوڑی سی تاخیر کرتا ہے تاکہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ آخرکار وہ پین ڈرائیو دے دیتا ہے، اور جب ایلس جانے لگتی ہے تو وہ نرمی سے پوچھتا ہے کیا وہ کبھی ساتھ بیٹھ کر کافی پی سکتی ہیں۔ ایلس بس مسکرا کر شکریہ کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جب ایلس دفتر آتی ہے تو سب اسے عجیب نظروں سے گور رہے ہوتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتی ہے جب ایک کولیگ اسے وہ وائرل تصویر دکھاتا ہے جس میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اور ایڈم ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں۔ ایلس جانتی ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، لیکن اس کا باس اس پبلسٹی سے بہت خوش ہے۔ باس کہتا ہے کہ اسے ایلس کا یہ نیا روپ بہت پسند آیا ہے۔ ایلس وضاحت دینے کی کوشش کرتی ہے، مگر باس کہتا ہے یہی تو میگزین کو چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے اگر ایلس واقعی ایک کم عمر لڑکے کو ڈیٹ کرے تو وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکے گی اور ان سے جڑ سکے گی۔ باس اسے یہ سلسلہ جاری رکھنے کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے ایسی چٹپٹی خبریں میگزین کی سیلز بڑھا دیں گی، لیکن ایلس کے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اسے کسی کم عمر لڑکے کو ڈیٹ کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ایلس یہ معاملہ اپنے دفتر کے قریبی دوست سے شیئر کرتی ہے۔
दोस्त उसे मशवरा देता है अगर वो चाहे तो एडम के साथ ज़ाहिरी तौर पर ये ताल्लुक रखने का ड्रामा कर सकती है। उसके मुताबिक अगर बॉस ये देखेगा तो शायद मुतासिर हो जाए और एलिस को आखिरकार वो प्रमोशन मिल जाए जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही है। एलिस जानती है कि किसी के जज्बात से खेलना और झूठ बोलना गलत है, लेकिन उसकी ख्वाहिश उस पर गालिब आ जाती है। वो फैसला करती है कि एडम को अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल करेगी। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है, मगर इस बार उसका अंदाज बिल्कुल नया और दिलकश होता है। एडम उस पर नजरें जमाने से बाज नहीं आ पाता। एलिस उससे छेड़छाड़ शुरू करती है और वो दोनों खुशगवार बातों में मसरूफ हो जाते हैं। एडम यकीन नहीं कर पाता कि वो उसके साथ वक्त गुजार रहा है। उसी रात एलिस उसे अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है, जहां वो जानबूझकर सबको ये दिखाना चाहती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के के साथ ताल्लुक बनाए हुए हैं। शो के दौरान उसकी दोस्त जो मेजबान भी है, एलिस के करीब आकर उससे नामुनासिब अंदाज में पेश आने लगता है। ये बात एडम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मजाक ही मजाक में शो के बीच मेजबान को सबके सामने हंसने का निशाना बना देता है। एलिस भी हंसती हुई उसका साथ देती है, जिससे उस दोस्त का इंसल्ट होता है और नाराज होकर वो चला जाता है। बाद में बातों के दौरान एडम कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एलिस जैसी महिला से मिलेगा और ये तो बिल्कुल ख्वाब ही जैसा है कि वो उसके साथ वक्त गुजार रहा है। वो कहता है कि उसे ये पता है कि एलिस तलाक याफ्ता है और एक बेटे की माँ है, लेकिन उसे उससे कोई मसला नहीं। एलिस कहती है कि उन्हें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसी वक्त एलिस को उसकी बहन का फोन आता है। बहन बताती है कि उसने डॉक्टर को खाने पर बुलाया है, वही डॉक्टर जिसे वो एलिस से मिलवाना चाहती थी। एलिस हिचकिचाते हुए एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे फौरन यहाँ से जाना होगा। एडम तुरंत फिक्रमंद हो जाता है, टैक्सी रोकता है और एलिस को उसमें बिठा देता है। एलिस पहली बार महसूस करती है कि एडम वाकई उसकी परवाह करता है। घर पहुंचकर एलिस अपनी बहन, बहनोई और डॉक्टर के साथ डिनर में शामिल होती है, मगर चूंकि वो पहले नशे में होती है इसलिए डॉक्टर से नामुनासिब सवालात पूछती है। डॉक्टर बुरा मान जाता है और नाराज होकर चला जाता है। इसी दौरान एलिस अब भी अपने बॉस को मुतासिर करने और प्रमोशन पाने की कोशिश करती रहती है, मगर कुछ भी काम नहीं आता। वो फैसला करती है कि एडम को एक हाई प्रोफाइल फैशन शो पर ले जाए, जहां उसके बॉस और कंपनी का सीईओ भी मौजूद हो। शो के दौरान एक मॉडल रैंप पर लड़खड़ा कर गिर जाती है। एडम तुरंत भागकर उसे सहारा देता है। सीईओ एडम की हमदर्दी से मुतासिर हो जाता है। शो के बाद एलिस और एडम पार्टी में शराब पीते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे ही कुछ होने ही वाला होता है, एलिस देखती है कि चंद लड़कियां उनकी खुफिया तौर पर तस्वीर ले रही हैं। घबराकर वो एडम का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है। एडम उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ जाता है। एलिस खामोशी से अपने घर के अंदर चली जाती है। एडम को लगता है कि उसने करीब आने का मौका खो दिया। अगले दिन एडम एलिस के घर जाता है और पता चलता है कि उसकी बेटी अपने खाला के घर रुकी हुई है। एलिस और एडम यहाँ खुशगवार लम्हात गुजारते हैं। दोनों करीब आ जाते हैं और यहाँ तक कि रात एक साथ गुजार लेते हैं। अगली सुबह एलिस को सख्त पछतावा होता है। वो एडम से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बाहर जोर की बारिश हो रही होती है, इसलिए एडम रुक जाता है। अचानक एलिस की बहन और बेटी घर लौट आते हैं। एलिस तुरंत समझदारी दिखाती है, एडम को कुलीद बताती है और कुछ फाइल्स उसे पकड़ा देती है ताकि वो किसी काम के सिलसिले से आया है। एडम जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, एलिस उसे अचानक वापस खींच लेती है और चूम लेती है। ये लम्हा दिखाता है कि उनके जज्बात अब हकीकत में बदल चुके हैं। जो ताल्लुक उसने सिर्फ अपने कैरियर के फायदे के लिए शुरू किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक सच्ची और गहरी मोहब्बत में ढलने लगता है। उस दिन के बाद से एलिस और एडम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। एडम एलिस को बार बार दिलचस्प आउटिंग्स और छोटी छोटी मोहब्बत भरी सरप्राइज देता रहता है। एलिस उन लम्हों को दिल से एंजॉय करती है। दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है और वो वाकई खुश नजर आने लगते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है, तुम जैसी खूबसूरत और खुशहाल औरत ने मुझे क्यों चुना? एलिस परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि शुरू में उसने ये रिश्ता खुदगर्जी के लिए बनाया था, मगर अब वो हकीकतन एडम से मोहब्बत करने लगी है। कुछ अरसे बाद एलिस को बिल आखिर उसकी देरीना प्रमोशन मिल जाती है। वो खुश तो होती है, लेकिन दिल दिमाग में बार बार एडम की याद आती है। वो सोचने लगती है कि क्या ये रिश्ता जारी रखना चाहिए। जब वो दोबारा मिलते हैं तो एडम उससे दिल की बात कह देता है।
मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है और एडम को समझाती है, हम दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, तुम्हारी सारी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। मेरी जिम्मेदारियां और भी हैं, मेरी बेटी है और मेरे और भी काम हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते, लोग क्या कहेंगे, बेहतर है हम यही सब कुछ खत्म कर दें। एडम राजी नहीं होता, मगर एलिस आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है। दिल ही दिल में वो जानती है कि उसने शुरू में एडम को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो वाकई उससे मोहब्बत करती है। फिर भी माशरती फैसले, अपनी जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। दोनों दिल टूटे हुए अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। एलिस सख्त तन्हाई का शिकार हो जाती है और एडम को भी भूल नहीं पाती। दूसरी तरफ एडम भी अजियत में है। वो अपने पिता को दिल का हाल सुनाता है। उसका पिता बताते हैं कि उन्हें भी कभी एक ऐसी मोहब्बत मिली थी जो अंजाम तक न पहुंच सकी। वो बेटे को मशवरा देते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिन बाद चीफ एग्जीक्यूटिव मैगजीन के नए कवर की तैयारी देखने आती है। उसे मुंतखब मर्द मॉडल पसंद नहीं आता। वो नया चेहरा ढूंढने लगती है। अचानक उसकी नज़र एलिस के लैपटॉप के वॉलपेपर पर पड़ती है, जो एडम की तस्वीर होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव फौरन उसे पहचान लेती है। वही लड़का जिसने फैशन शो में मॉडल को सहारा दिया था। वो फैसला कर लेती है कि एडम ही नया मॉडल होगा। एलिस इस फैसले से खुश नहीं होती और एडम से दोबारा जुड़ने की हक में नहीं होती, मगर बॉस के दबाव में आकर उसे मानना पड़ता है। वो एडम को कॉल्स और मैसेजेस करती है, लेकिन एडम टूटे दिल के साथ शराब के नशे में घर पर पड़ा रहता है और उसे नजरअंदाज करता है। आखिरकार एलिस खुद उसके घर पहुंचती है। एडम समझता है कि एलिस सुलह करने आई है, मगर एलिस साफ कहती है उसे मैगजीन के लिए मॉडलिंग करनी होगी। खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने और पैसे कमाने का मौका मिलेगा। एडम को झटका लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि एलिस सिर्फ काम के लिए आई है, मोहब्बत के लिए नहीं। गुस्से और दुख में वो कहता है, बेहतर है हम दोबारा कभी ना मिले, और चला जाता है। फोटोशूट वाले दिन सब बेचैनी से एडम का इंतजार करते हैं। एलिस को डर होता है कि अगर वो ना आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बिलाखिर सबकी उम्मीद टूटने ही वाली होती है कि एडम आ जाता है। उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है, जहां एलिस का दोस्त उससे माफी मांगने लगता है। वो एतराफ करता है कि उसने ही एलिस को यह मशवरा दिया था, ये प्रमोशन के लिए रिश्ता झूठ मूठ का बना ले। ये सुनकर एडम का दिल और भी टूट जाता है। फिर भी वो सबके सामने जाकर एलिस को चूम लेता है और शूट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चूंकि वो मॉडलिंग से नावाकिफ होता है, फोटोग्राफर बार बार उसे पोज बताता है। एडम को गुस्सा आता है और वो सब्र खो बैठता है। वो शूट छोड़कर जाने लगता है। एलिस उसे रोकने आती है, मगर एडम गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मेरा इस्तेमाल किया। वो टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। एलिस भी बिखर जाती है और आखिरकार नौकरी से फारिग कर दी जाती है। अकेली और एडम की यादों में डूबी हुई, वो समझती है कि एडम उसके लिए उसके कैरियर से भी ज्यादा कीमती था। आखिरकार वो एडम के कॉलेज जा पहुंचती है। सबके सामने खड़े होकर कहती है, मुझे अब मुस्तकबिल या लोगों की राय की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो उससे अपने दिल की बात कहती है, माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। एडम, जो अब भी उससे मोहब्बत करता है, उसे माफ कर देता है और दोनों आपस में खुश हो जाते हैं। यूं वो दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी मोहब्बत के सामने परिवार या माशरा खड़ा हो जाए, तो क्या आप फिर भी अपनी मोहब्बत के लिए डरेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।